चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी, ओपी शर्मा जी एमएलए, प्रोफेसर योगेश सिंह वाइस चांसलर एंड चेयरमैन AICTE, सेक्रेटरी एजुकेशन संजीव आहूजा, वाइस चांसलर साहब, distinguished guests, all the proud parents, and my dear graduating students. Every convocation marks more than the completion of an academic journey. It marks the beginning of countless new ones. Today, as I stand here at the 18th convocation of Indraprastha University and my first as Chancellor, I see not just graduates but individuals ready to shape the future of our nation. As the introducer mentioned, yes, it's indeed a bit emotional moment for me. He mentioned about my family, about my father, the link to education, but I also want to mention here, especially when I see so many lady graduates, that my mother in 1956 went to Ohio State University and did her doctorate. She did her doctorate in 2 years. Even today it's a challenge. And came back and taught in Amritsar, Government College for Women, Amritsar. A university is not merely a collection of buildings or a grantor of degrees. It's a sanctuary of ideas and a forge where character, capability, and conviction are shaped. Named after Guru Gobind Singh Ji, this institution carries a legacy of courage, wisdom, and service. His teachings, rooted in truth, humility, discipline, and compassion, remain deeply relevant in today's rapidly changing world. They remind us that education is not just about knowledge, but about values that guide us its use. Established in 1998, GGS IPU has in a relatively short span grown into a vibrant, multidisciplinary university. It has consistently nurtured talent and fostered excellence in professional and technical education, preparing students not just for careers, but for meaningful contribution to society. The graduating class of 2026 stands at a unique moment. The world you step into is being reshaped by unprecedented technology change, from artificial intelligence to sustainable innovation. In such a landscape, education must go beyond degrees. It must equip you with adaptability, critical thinking, and the courage to innovate. As Lieutenant Governor, I witnessed firsthand the challenges before our city, but I also see immense opportunity. We need individuals who do not merely seek employment, but who create solutions, whether in urban development, public health, or digital governance. Each one of you has the potential to contribute to the vision of Viksit Delhi
and a Vikshit Bharat of Prime Minister Modi by 2047. As you move forward, allow me to leave you with 3 thoughts. Choose resilience over comfort. The path ahead will not always be easy, but it is through challenges that characters are built. Lead with integrity. In a fast-moving world, let your values remain constant. Build not just quickly, but wisely and responsibly. Embrace the spirit of service. Never forget the community that supported you. True success lies in how many lives you uplift along the way. To the parents, your sacrifices are the silent strength behind this achievement. To the faculty, your guidance has transformed curiosity into capability. And to the graduates, the degree you receive today is not the end of learning, but the beginning of a lifelong journey. Stay curious, stay grounded, and move forward with confidence. Guru Gobind Singh Ji taught us that knowledge is the greatest force for justice and service. As you step into the world, carry this ethos with you. Your education is not just a personal milestone, it is a responsibility. The future of Delhi and of Bharat will be shaped by minds like yours. As Prime Minister Modi has underlined, step forward with courage, act with purpose, and strive to make the difference. Once again, congratulations to the class of 26. जय हिंद। सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है जब इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में, इस प्रांगण में आकर के आप सभी मान्यवर साथियों के बीच में पहुंच के और हजारों विद्यार्थियों के उस दिन में शामिल होना जो उनकी जिंदगी के लिए सचमुच एक माइलस्टोन है। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में हमारे दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री तरनजीत सिंह संधू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बहुत अभिनंदन करती हूं आदरणीय उपराज्यपाल महोदय का। हमारे इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री महेश वर्मा जी, जिन्होंने लगातार अपनी मेहनत के साथ, अपने विजन के साथ इस यूनिवर्सिटी को एक नए मुकाम पे ले जाने के लिए मेहनत की और हर साल एक नए स्टेप पे हम पहुंचते हैं, एक नई ऊंचाई के साथ इस यूनिवर्सिटी को हम ले जा करके काम करते हैं। मैं महेश वर्मा जी को भी बहुत बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं। हमारे योगेश सिंह जी जो कि वाइस चांसलर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के और एक ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी जिनके आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी सच में महक रही है, चहक रही है और अपनी पूरी क्षमताओं के साथ काम कर रही है। संजीव आहूजा जी जो हमारे सचिव हैं शिक्षा विभाग के, आपका अभिनंदन। गुलशन कुमार जी, कमल पाठक जी और यहां मेरे सामने उपस्थित आप सभी प्रोफेसर्स, आप सभी विद्यार्थीगण और विभिन्न यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण। हर व्यक्ति की जिंदगी में ये माइलस्टोन आता है तो वो ये जरूर सोचता है कि मुझे आगे क्या करना है। मैं महेश जी को कह रही थी कि महेश जी,
आज आपने 26,649 वर्किंग हैंड इस भारत देश को दिए हैं, जिनके साथ में भारत आगे बढ़ने वाला है। उनका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य होगा, उनका विजन भारत का विजन होगा और उनकी ऊंचाई भारत की ऊंचाई होने वाली है। ये वो लोग हैं जो ना केवल अपने कैरियर को आगे लेकर के जाएंगे, बल्कि इस देश के लिए नई सोच, नए विजन पे काम करते हुए पूरे राष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। और ये यूनिवर्सिटी जो हमारी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से है, एक ऐसी शख्सियत जिसने देश, दुनिया, समाज को दिशा देने का काम किया, वो हम सबको भी बहुत ही मानवीय मूल्यों के साथ में इस जीवन संघर्ष में उतरने का प्रेरणा देती है, मार्गदर्शन देती है। ये जिंदगी जो आज से शुरू होने वाली है, इसमें पहुंच के हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े, पर ये मैं मानती हूं कि उन चैलेंजेस से आगे वो सपने पूरे होने का मुकाम है जो आपने देखे हैं। और ये यूनिवर्सिटी के दौरान आपके गुजारे गए 3, 4, 5 साल जो आपने यहां पे बिताए हैं, ये सबसे खूबसूरत लम्हे हैं जो आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। आज आपकी केवल एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया वो पूरी नहीं हुई, पूरे हुए हैं आपके पेरेंट्स के सपने, पूरी हुई है आपके टीचर्स की, प्रोफेसर्स की मेहनत जो लगातार आपको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने की, और पूरे हुए हैं वो सारे के सारे लक्ष्य जो इस यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए देखे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं। 26,000 स्टूडेंट्स जब सच में अलग अलग सेक्टर्स में जा करके अलग अलग सेगमेंट में काम करते हुए इस देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, तो वो जो सपना हम भारतीयों ने देखा है, 140 करोड़ लोग रोजाना ये सोचते हैं कि कब हमारा भारत देश विश्वगुरु बनने वाला है। और वो अपने आप नहीं बनने वाला साथियों, वो विश्वगुरु बनेगा आपके और मेरे सबके काम करने से। चाहे वो हमारे प्रोफेसर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे अधिकारी हों, हर व्यक्ति जब इकट्ठा मिलकर के काम करेगा तब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते जब दिल्ली की सड़कों पे से गुजरती हूं और मैं देखती हूं कि कहीं पे खुदाई हो रही है, कहीं पे मलबा पड़ा है या कहीं पे कूड़ा पड़ा है, तो कहीं जहां सरकार की और अधिकारियों की जिम्मेवारी ध्यान में आती है, तो वहां मुझे यह भी ध्यान में आता है कि हम ही भारतीय जब विदेशों में जाते हैं तो हम बहुत ही सेंसिटिव नागरिक बन जाते हैं। हम वहां जो हमारा बिहेवियर होता है वो बड़ा सभ्यता के साथ, सिविक सेंस के साथ जुड़ा होता है, पर हम अपने देश में आते ही एक अलग प्रकार की आजादी को पा लेते हैं और यहां हमें लगता है कि बस नाउ वी कैन ब्रीथ, अब हम सांस ले सकते हैं, अब हम जो कुछ कर सकते हैं, हम नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, ये मेरी धरती है इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये धरती हमारी मां स्वरूप है। ये शहर वो जगह है जहां हमने अपने बचपन से लेकर के आज तक के पूरा जीवन गुजारा है। और आज से ये जिम्मेदारी जब शुरू होती है कि मुझे अपने शहर के लिए क्या करना है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूं कि हम सब मिलकर के जहां पर भी होंगे, जिस भी प्रोफाइल में होंगे, जरूर अपने शहर की भी चिंता करेंगे और अपने देश की भी चिंता करेंगे। सब कुछ करते हुए, जीवन के लक्ष्यों को पाते हुए, सपनों को पूरा करते हुए, परिवार को आगे ले जाते हुए, एक मन में एक खाना जरूर ऐसा छोड़िएगा जो दिन रात अपने देश की चिंता करे, अपने शहर को सुधारने के लिए। और उसमें भी मेरा रोल प्रोफाइल, मैं
क्या क्या कर सकता हूं। मेरी अपनी एक सोच है, अपना एक विजन है। उस विजन के साथ मुझे देश की इस राजधानी दिल्ली को आगे बढ़ाना है। अभी मान्यवर जब कंपेयरिंग कर रहे थे तो मेरे बारे में उन्होंने कहा कि बचपन से लक्ष्य के ऊपर निगाह करते हुए मैं आगे बढ़ी। कभी लक्ष्य सामने नहीं था मेरे, पर हां ये जरूर था कि जो रास्ते पे मैं चल रही हूं इस पे चलती चली जाऊं, और वो रास्ता जिस दिशा में मुझे लेके जाएगा, यदि मैं मेहनत करूंगी तो जरूर सफलता जरूर मिलेगी मुझे। और यही सीख, यही छोटा सा उपहार मैं आप सबके लिए लेके आई हूं कि ये अपने पास जरूर रखिएगा, अपने पल्लू से, अपने रुमाल में गांठ बांध के, कि कभी गिव अप नहीं करना है। मुश्किल कोई भी हो, किसी भी तरह का चैलेंजेस हो, चुनौती हो, हर परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़े होकर के, सही के साथ, सच के साथ डटे रहेंगे तो हर इम्पॉसिबल भी ये कहेगा आई एम पॉसिबल। थैंक यू सो मच। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं इस नए मुकाम के लिए, इस नए जीवन के लिए। थैंक यू सो मच।